Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani and today we are going to solve NTA paper 91. So let's start from the question number 1. So our question number 1 is the IUPAC name of the compound. So students, this is very easy question. You have to write the IUPAC name of this compound. So select the long chain of carbon atom. 3 carbon atom. 1, 2, 3. Minimum number 2. Substitute, that will be 2. So this is 2-chloropropene. So correct answer is 2-chloropropene. Now next question. Identify the correct statement. Lead forms compound in +2 oxidation state due to inert pair effect. All halogen forms only negative oxidation state. Catenation property increases from boron to oxygen. Oxygen's oxidation state is -1 in ozonoids. So students, you have to find correct statement. So statement 2, all halogen forms only negative oxidation state is wrong. Suppose we have compound IF7. So in IF7, oxidation state is 7 plus 7. So always -1 oxidation state. This is wrong statement. Moving to next, catenation property increases from boron to oxygen. Means ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कैटेनेशन की ज्यादा होनी चाहिए कार्बन से, लेकिन हमें पता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है. सो ये स्टेटमेंट में क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 इन ओजोनॉइड. तो स्टूडेंट ओजोनॉइड होता है O3 -1. मीन्स 3 oxygen atoms have -1 charge. So X is -1/3. So these 3 statements are wrong. Now moving to lead forms compound in +2 oxidation state due to inert pair effect. So students, lead is coming in carbon family. Carbon, silicon, germanium, acid and Pb. So you know last 3 elements shows +2 and +4 oxidation state due to inert pair effect. So if it is saying Pb forms +2 oxidation state due to inert pair effect, so this is correct. Due to inert pair effect, up to down inert pair effect increases and Pb forms +2 oxidation state. So correct statement is 2. Now question number 3. Rank the following compounds in increasing order of their acidity. Means acidic strength. So 3-fluorobutanoic acid. So butanoic acid 1, 2, 3 and COOH 1, 2, 3 fluorobutanoic acid. 3-chlorobutanoic acid. Again butanoic acid, 4 carbon containing carboxylic acid and 3 पे क्या होना चाहिए? Cl. And 2-fluorobutanoic acid. So this is butanoic acid and 2 पे क्या होना चाहिए? Fluoro. Then butanoic acid. So 4 carbon containing carboxylic acid, butanoic acid and 4-chlorobutanoic acid. Okay. Then this is butanoic acid and 4 पे क्या होना चाहिए? Cl. Now students, acidic strength COOH की acidic strength को withdrawing group तो बढ़ाएगा और डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देगा? कम करेगा. अगर यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है एसिडिटी इंक्रीजेस. नाउ फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर विड्रॉइंग ग्रुप. तो ब्यूटेनोइक एसिड तो आपका सबसे पीछे आ जाएगा. मीन्स ये जो 4th है ये लीस्ट हो जाएगा, है ना? यानी आंसर बी और डी में से एक होना चाहिए. नाउ फ्लोरीन और क्लोरीन में अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? तो आपको पता है फ्लोरीन. सो फ्लोरीन इज बेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप और जितना नजदीक होगा -I इफेक्ट ज्यादा होगा. तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा 2-fluorobutanoic एसिड. सो 2-fluorobutanoic एसिड यानी थर्ड आंसर जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए और 4th जो है वो लोवेस्ट होना चाहिए. तो 4th लोवेस्ट मिला बी और डी में. अब हाईएस्ट है थर्ड, है ना? 2-fluoro यानी कि 10. आफ्टर दैट फ्लोरीन थोड़ा दूर चला गया तो ठीक है 1, 2, 3 फ्लोरोब्यूटेनोइक एसिड यानी कि थर्ड के बाद 1 आना चाहिए. फिर क्लोरीन नजदीक होना चाहिए तो सेकेंड, फिर क्लोरीन दूर चला गया तो 5 एंड
So correct answer is fourth. Now sodium and magnesium. Question number 4. Sodium and magnesium crystallize in BCC and FCC crystals respectively. Then the number of atoms of sodium and magnesium present in the unit cell of their respective crystal is. So सोडियम क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी में. बीसीसी में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर. नाउ कॉर्नर होते हैं 8 और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. बॉडी सेंटर मीन्स सेंटर ऑफ द बॉडी एंड फुल्ली कंट्रीब्यूटेड. क्यूब के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो कंट्रीब्यूशन 100% हुआ. सो बीसीसी के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया 2. नाउ मैग्नीशियम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी. तो एफसीसी मीन्स कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस. Center of each face. So students again there are 8 corners. Contribution is 1/8. क्यूब में फेसेस होती है 6, है ना. अगर आप डाइस देखो, अपना रूम देखो तो टॉप और फ्लोर, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट. क्यूब में फेसेस है 6 और हर फेस के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल रखा है तो कंट्रीब्यूशन इज 1/2. सो देयर आर 6 फेसेस. कंट्रीब्यूशन इज 1/2. सो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स तो सोडियम में होने चाहिए 2, मैग्नीशियम में होने चाहिए 4. सो करेक्ट आंसर इज 4. मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड मेक्स आयरन पैसिव. सो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा एसिड है जो आयरन को पैसिव मतलब इनर्ट बना दे. तो अब ध्यान से देखो, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड भी है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड आयरन से कॉन्टैक्ट में आते ही FeSO4 बना लेगा, है ना. क्या सल्फेट देन फेरिक सल्फेट. लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? आयरन को ऑक्सीडाइज करके Fe2O3 में कन्वर्ट कर देगा. नाउ एक बार आयरन Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, यानी ये आपका आयरन और इसकी सरफेस पे क्या बन गई? ऑक्साइड की लेयर. जैसे आप कह रहे हो Fe2O3 ऑक्साइड लेयर. अब अगर इसके ऊपर कुछ भी आएगा तो अब देखो आयरन उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा. मींस नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? आयरन के ऊपर Fe2O3 की लेयर बना देगा. इस लेयर से अब ये जो है पैसिव हो चुका है, अब किसी और से रिएक्ट नहीं करेगा. सो लर्न करने वाला क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज नाइट्रिक एसिड. नाउ an element X which occurs in the second short period has an outer electronic structure S2P1. What are the formula and acid base character of its oxide? So students, एक तो एलिमेंट है X, कॉन्फ़िगरेशन है S2P1. अब देखो शॉर्ट पीरियड, सेकेंड शॉर्ट पीरियड, तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम रखा है, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड हो गया हाइड्रोजन हीलियम. फिर लिथियम से लेकर अगर आप नियॉन तक गए, दैट इज शॉर्ट पीरियड. फिर लिथियम के बाद आप आओ नीचे, सोडियम से लेके हीलियम आर्गन, यानी कि सोडियम से आर्गन में जब आप जा रहे हो तो ये हो गया सेकेंड शॉर्ट पीरियड. ठीक है. अब सेकेंड शॉर्ट पीरियड में भी आपसे पूछा है क्या? S2P1 यानी बोरॉन फैमिली ग्रुप 30, बोरॉन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम और थीलियम. तो देखो फर्स्ट तो वेरी शॉर्ट है हाइड्रोजन हीलियम है, सेकेंड शॉर्ट का फर्स्ट मेंबर बोरॉन है, फर्स्ट शॉर्ट का ये मेंबर बोरॉन है, सेकेंड शॉर्ट में इसी ग्रुप में आए तो ये मेंबर है एल्यूमिनियम, S2P1, है ना. देखो S2 मतलब ग्रुप 1 गया S1, ग्रुप 2 गया S2, P ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज, है ना. तो हम गए सेकेंड शॉर्ट पीरियड का S2P1 वाला मेंबर है एल्यूमिनियम. अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है? Al2O3. तो अगर मैं X से लिखूं तो X2O3 और Al2O3 बाय नेचर हमें पता है Al2O3 इज एम्फोटेरिक, है ना. एम्फोटेरिक क्यों? तो हम कहेंगे Al2O3 एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है. अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन HCl से कराऊं तो ये AlCl3 बना देगा. और एक बहुत फेमस कंपाउंड आपने पढ़ रखा है
अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन NaOH से कराऊं देन इट फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है, मीन्स इट हैज एम्फोटेरिक कैरेक्टर। सो करेक्ट आंसर इज सी। Now moving to next question. Next question is the products obtained when benzyl phenyl ether is heated with HI in the mole ratio 1:1. So students 1:1 है ना, benzyl phenyl. So benzyl means carbon next to benzene. So this is phenyl, sorry benzyl, ether की बात चल रही है, ऑक्सीजन एंड phenyl. क्लियर, इसकी रिएक्शन हमें करानी है HI से। अब स्टूडेंट्स अगर बिना मैकेनिज्म करना है तो आपको क्लियर है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो हम बेंजीन से O को अलग नहीं करेंगे, ये तो इसका इसके साथ ही रहेगा, O नेगेटिव और बेंजाइल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस और I माइनस। तो हमें पता है फिनॉल तो हमें बनाना ही है, बेंजीन से O को अलग नहीं करेंगे ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो बेंजीन O और यहाँ आ गया H, और नेक्स्ट जो बना दैट इज बेंजाइल आयोडाइड, बेंजीन CH2। सो करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है, तो फिनॉल तो नहीं है, बेंजाइल आयोडाइड। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजाइल फिनाइल ईथर हीटेड विद HI इन द मोलर रेशियो आर। सो 1 and 3, 1 तो हो गया आपका फिनॉल, 3 हो गया बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है ना, बेंजाइल फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड। सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3 A। So moving to next question. Question number 8. एनिलीन की रिएक्शन हमें करानी है क्लोरोफॉर्म QH। सो बच्चों अमाइंस की रिएक्शन अगर आप कराएंगे क्लोरोफॉर्म QH तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है आइसोसाइनाइटिस। तो एनिलीन क्लोरोफॉर्म QH मीन्स फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर। अब आइसोसाइनाइड बहुत पेंजेंट स्मेल कंपाउंड होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की वजह से ये नेम रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आफ्टर दैट आपसे पूछा है कि ये बन गया आपका वाटर, ठीक है। फिर आपसे कहा है कि इसको हाइड्रोलाइज कर दो HCl की प्रेजेंस में 300 केल्विन पे, तो Z बनेगा प्लस मीथेनॉइक एसिड। अब देखो बच्चों मान लो आपको नहीं आया तो हाइड्रोलाइज करना, ठीक है, हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। और आपको दिया है कि साइड प्रोडक्ट जो मीथेनॉइक एसिड है, मीथेनॉइक एसिड यानी कि ये फॉर्मिक एसिड, देखो बना क्या HCOOH, बन गया फॉर्मिक एसिड। तो रिमेनिंग क्या है, तो ध्यान से देखो रिमेनिंग है बेंजीन पे NH2 एनिलीन। सो जो Z है ये वही हो गया, तो ये Z हो गया, तो Z जो है वो वापस एनिलीन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एनिलीन। Moving to next, question number 9. Phenol reacts with bromine in carbon disulfide at low temperature to give. So student बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको फिनॉल की रिएक्शन करानी है ब्रोमीन से, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस। नाउ फिनॉल जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव होता है। दो तरह की रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, फिनॉल प्लस ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे, पोलर मीडियम में कराओगे, तब तो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, लेकिन वो होगा ब्रोमीन प्लस यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था वाटर। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ना टेम्परेचर भी लो है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल है आपका ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव। सो आंसर क्या होगा, एक प्रोडक्ट हमारा बनेगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और सेकेंड प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज पैरा ब्रोमोफिनॉल। सो अब आप करेक्ट आंसर देख लो, तो मेटा तो नहीं हुआ, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल इज करेक्ट ऑप्शन। The equation of state corresponding to 8 gram of O2 is, अब स्टूडेंट 8 ग्राम ऑक्सीजन है और P इक्वल्स टू 8RT, P इक्वल्स टू RT, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन लगा है। तो बच्चों देखो P इक्वल्स टू NRT, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करने, ऑक्सीजन के। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास। गिवन मास किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो ऑक्सीजन कितनी है, आई थिंक 8 ग्राम दे रखा है एंड मोलर मास इज 32, O का 16 होता है ना,
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 आपको पता ही है, तो 8/32 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। तो P इक्वल्स टू nRT लगा दो, तो n की जगह क्या पुट कर दो 0.25 और क्या हो जाएगा RT मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Moving to next problem, the process of heating the ore strongly in excess of air. So the volatile impurities are removed and the ore is changed into oxide is known as. अब स्टूडेंट्स ओर को इसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओर जो है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमने दो बार पढ़ा था, एक बार था रोस्टिंग और एक बार था कैल्सिनेशन। दोनों में वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो है वो गायब हो जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या था, रोस्टिंग एक्सेस ऑफ एयर था, कैल्सिनेशन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब आपको क्या दिया है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। तो देखो डायरेक्ट डेफिनेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो फ्लोटेशन तो नहीं होगा, सल्फाइड ओर के लिए होता है ये, तो लीचिंग भी नहीं होता है ना। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, लीचिंग आपको पढ़ा होगा एल्यूमिनियम के लिए होता है, Al2O3 के लिए। सो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में से अगर हमें आंसर देना है तो करेक्ट आंसर इज रोस्टिंग। Now, question number 12, which of the following transitions involves maximum amount of energy? अब देखो M माइनस M में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। फिर M से M प्लस बनाया, फिर M प्लस से M प्लस 2 बनाया और M प्लस 2 से M प्लस 3 बनाया। तो स्टूडेंट्स जब आप कैटायन बनाते हो यानी गैसियस न्यूट्रल एटम से, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बनाते हो तो एनर्जी खर्च होगी। अब एनर्जी जो खर्च होगी दैट इज आईपी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो IP1, सेकेंड निकालते हो तो IP2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो IP3। अब आपको पता है जिस इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, खिंचाव बढ़ेगा, है ना। तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और हमने देख रखा है IP3 ग्रेटर देन IP2 ग्रेटर देन IP1। तो इन तीनों में, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, तो इतनी ज्यादा एनर्जी है नहीं, तो इन तीनों में से ही आंसर आपका रहेगा। तो IP3 शुड बी मैक्सिमम, सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ Na2S2O3 रिएक्ट विद एक्वस कॉपर सल्फेट टू गिव। सो स्टूडेंट्स एक्सेस ऑफ Na2S2O3, एक्सेस का ध्यान रखना आपको, इसकी रिएक्शन यानी कॉपर सल्फेट से। अब देखो एनसीईआरटी में कहीं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में इस तरह का कोई टाइट्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जो सिलेबस में है नहीं, तो अगर नहीं याद है तो उनको छोड़ने में भलाई है, क्योंकि इसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन आप कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो फर्स्ट रिएक्शन तो आयोनिक हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कॉपर थायोसल्फेट Cu2S2O3 प्लस Na2SO4। ठीक है, अब ये ऑप्शन तो है आपके पास Cu2S2O3, लेकिन फिर एक्सेस का क्या मतलब हुआ, ये तो आपने बराबर ही ले लिया, यानी ये फिर कुछ जाके काम करेगा। देखो ये जो हमारा है कॉपर, यानी कह दो क्यूप्रिक, कॉपर +2 स्टेट में ना, क्यूप्रिक थायोसल्फेट, अगर इसकी रिएक्शन में फिर से करा दूं Na2S2O3, तो ये जो क्यूप्रिक है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस में, क्योंकि Na2S2O3 इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ये जो क्यूप्रिक है ये क्यूप्रस, यानी ये बना देगा Cu2S2O3। तो Cu2S2O3 बनेगा, तो जो रिमेनिंग है दैट इज Na2S4O6। अब क्या होगा, Cu2S2O3 में आपके पास ऑप्शन में है, लेकिन आगे रिएक्शन और मूव कर जाती है, और ये जो आपका Cu2S2O3 है, 3Cu2S2O3, ये वापस रिएक्ट कर जाता है Na2S2O3 से, और क्या बनाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा
और वो कॉम्प्लेक्स है Na4 देन कॉपर कितने हो गए 6 हो गए ना, तो Na4Cu6 H2O3 कितना है आपका 3 and 2 5, तो Na4Cu6 H2O3 होल 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 4 Na4Cu6 H2O3 होल 5 सोडियम क्यूप्रोथायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी करेक्ट आंसर डी। So next question, arrange in the order of stability of enol form of the compounds. So compounds are cyclopropanone and cyclohexanone. So students, enol form means tautomalism। और cyclopropanone यानी कि कीटोन की बात चल रही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH। टॉटोमैरिज्म क्या होता है बच्चों? टॉटोमैरिज्म होता है, देखो मान लो अगर मैं बेस की प्रेजेंस में बात करूं तो ये बॉन्ड अगर यहाँ टूट गया तो ये वो नेगेटिव, कार्बन क्या हो गया पॉजिटिव। अभी कार्बन पॉजिटिव हो गया तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये प्रोटॉन जो है ये बेस ले जाएगा तो ये बनेगा आपका CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, यानी कि ये बना CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाटर से वापस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये जो कंपाउंड बना दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH। तो एक इनॉल फॉर्म तो आपके पास ये है, ये इसका इनॉल फॉर्म है एसीटोन का। सिमिलरली अगर मैं साइक्लोहेक्सेनोन का इनॉल फॉर्म बनाऊं तो वो भी ऐसे ही बनेगा। देखो पहले बॉन्ड टूट गया O नेगेटिव, यहाँ कार्बन पॉजिटिव, ये वाला प्रोटॉन छोड़ देगा, ये प्रोटॉन में वापस यहीं शिफ्ट कर देती हूँ तो ये हो गया OH एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो इनॉल फॉर्म इसका है और ये साइक्लोहेक्सेनोन का है। अब इन इनॉल में आपको पूछा है स्टेबिलिटी बताओ, तो इनॉल में देखो इनॉल एल्कीन बन गया, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन greater will be hyperconjugation resonating structure, greater will be stability। तो C डबल बॉन्ड C देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए अल्फा CH2, ये CH2, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 4 और अगर आप यहाँ आ जाओ C डबल बॉन्ड C तो ये अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आपके इधर है यानी ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, तो इस कंपाउंड सेकेंड वाले का जो इनॉल है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ग्रेटर देन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रोमोफोर। सो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डाइज में से, है ना। डाइज में हमारे पास थियरी थी ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर थियरी। नाउ व्हाट इज ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर थियरी, तो डाई में 2 ग्रुप होते हैं, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। ठीक है, अब क्रोमोफोर मीन्स कलर इम्पार्टिंग और ऑक्सोक्रोम मीन्स कलर इंक्रीजिंग, कलर इंटेंसिटी इंक्रीजिंग। तो क्रोमोफोर ग्रुप जो होते हैं दैट इज N डबल बॉन्ड एन आपका एसो ग्रुप क्रोमोफोर है, NO ग्रुप भी क्रोमोफोर है, NO2 भी है, लेकिन NH2 ग्रुप जो है ना, COH हुआ, SO3H हुआ, ये तो आपके एसिडिक हो गए, और NH2 ये आपका बेसिक ग्रुप है ना, NH है, ये सारे आपके क्या है ऑक्सोक्रोम, ये कलर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो आपसे पूछा नॉट अ क्रोमोफोर, तो ये तीनों तो क्रोमोफोर है, ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप है, सो करेक्ट आंसर इज डी। So next question is question number 16. If one strand of DNA has the sequence ATCGTA-TG, the sequence in the complementary strand would be. So बच्चों DNA का एक strand यानी कि ये इस तरह से, ठीक है, और opposite strand यानी, अब DNA में होता क्या है, तो यहाँ पे बेसिस है तो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बन जाता है T से, थायमिन। नाउ थायमिन वापस किससे बन जाता है एडेनिन, देन C और G ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है C।
तो ये तो नेचुरल है ना, ये जो एक कॉइल है इसमें 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि जो कॉम्बिनेशन आपको दिया जा रहा है, यानी आपको दिया है A, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो हम कहेंगे T। फिर T दिया है तो T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, फिर C, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री G, फिर आपके पास G है तो G का कॉम्प्लीमेंट्री C, देन T है तो हमारे पास A हो जाएगा, फिर आपके पास A है तो T हो जाएगा, फिर T है तो C हो जाएगा, सॉरी T है तो A हो जाएगा, और G है तो C हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर है वो है TAG, टैग कैट AC, यानी कि टैग कैट AC, एंड करेक्ट आंसर इज C। So question number 17, which of the following nitroalkane will not show tautomalism? So students, tautomalism के लिए हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ नाइट्रो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका अल्फा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ इस ग्रुप में आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो टॉटोमरिज्म, मीन्स करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड X is highly volatile and insoluble in water. So bonding in X is ionic, covalent, polar covalent and coordinate. So students, highly volatile मतलब वेपर जल्दी बना देता है। तो वेपर जल्दी बना देता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट लो एंड वाटर इनसॉल्युबल, ये कैरेक्टर आयनिक के लिए। आयनिक में क्या होता है, आयंस प्लस और माइनस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पोलर कोवलेंट में भी क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो भी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो दीज कैरेक्टर्स जो है ये बिलोंग करते हैं कोवलेंट। सो करेक्ट आंसर इज कोवलेंट। सो क्वेश्चन नंबर 19, अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3O4+2 with copper ions in alkaline solution but not in acidic solution. The probable reason for this is, so students, अमोनिया कॉपर के साथ में बेसिक मीडियम में ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है टेट्रामीन कॉपर +2 आयन। अब ये एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं बनाता, तो इसका तो साफ आंसर है कि एसिडिक मीडियम में अमोनिया क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ब्रॉन्ज स्टेट लॉरी बॉडी की बहुत अच्छा बेस है, तो एसिडिक मीडियम प्रोटॉन लिबरेट करेगा, अमोनिया ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनिया क्या बना देगा, अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन है तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल था और ये एज ए लीगेंड बिहेव कर रहा था, है ना, और लीगेंड की वजह से ये कॉपर +2 आयन के साथ क्या करता है, 4 बार इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता था टेट्रामीन कॉपर जिसे हम कह रहे हैं, है ना, CuNH3, और ये भी क्या हो गया, NH2। तो ये कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब अमोनिया होगा, लेकिन एसिडिक मीडियम में अमोनिया अवेलेबल ही नहीं, क्या हो गया, अमोनियम आयन। सो करेक्ट आंसर आपके पास करेक्ट है, एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट्स विद अमोनिया मॉलिक्यूल टू फॉर्म NH4+, अमोनियम आयन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर इज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो आपके पास है 2-methyl cyclohexene, इसकी रिएक्शन करानी है ब्रोमीन एंड सनलाइट। तो स्टूडेंट ब्रोमीन तो ठीक है, हाइड्रोजन आपको रिएक्शन करानी है सनलाइट से। नाउ स्टूडेंट, सनलाइट से जब आप रिएक्शन कराएंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो सनलाइट सपोर्ट करता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को सनलाइट जो है वो सपोर्ट करता है। रिएक्शन यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो अब हमें ये देखना है फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल कौन सा बनेगा। सो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब होना क्या है, तो यहाँ हमें बनाना है ऐसा फ्री रेडिकल जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब देखो, अगर मैं यहाँ वाला ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, तो जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज एलाइलिक फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल आपका स्टेबल है, एक तो ये 3 डिग्री एज वेल एज ये है एलाइलिक फ्री रेडिकल। एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है,
है ना। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, देखो ये बॉन्ड इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज लाइक दिस। सो दो पॉसिबिलिटीज है कंपाउंड बनने की, एक बार तो Br डॉट यहाँ अटैक कर ले, दूसरी बार Br डॉट यहाँ अटैक कर ले, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही होगा क्योंकि ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। सो Br अगर यहाँ अटैक करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। So students, next question number 21. In a reversible process, delta S system plus delta S surrounding is. So reversible में क्या होता है, total change in entropy, यानी delta S total जो है that should be 0 for a reversible process. So delta S system plus delta S surrounding equals to क्या हो गया, delta S total, और रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल जो है वो क्या है, 0। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 22. द वर्क फंक्शन फाई ऑफ सम मैटर्स इज लिस्टेड बिलो. द नंबर ऑफ मैटर्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when light of 300 nanometer wavelength falls on the metals is. So students, यहाँ हमें कुछ मेटल्स दे रखे हैं, लिथियम एंड के, सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, प्लैटिनम एंड टंगस्टन, और इनके वर्क फंक्शन हमें दे रखे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमें मिला है कि 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो मेटल पे इसने स्ट्राइक करा है। सो स्टूडेंट्स, अगर 300 नैनोमीटर वाली लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो फोटोन की एनर्जी देख लेते हैं। लाइट की एनर्जी क्या होती है, hc बाय लैम्डा, लेकिन हमें लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ताकि हम कंपेयर कर पाए। सो hc बाय लैम्डा, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना चाहूँ एनर्जी को, तो इट विल बी 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। सो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 300 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया, 3000 एंगस्ट्रॉम। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 12,400 divided by 3000 नैनोमीटर, 3000 एक्स्ट्रा। सो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो फोटोन आपका स्ट्राइक कर रहा है इसकी एनर्जी है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी ऐसा मेटल जिसमें वर्क फंक्शन जो है, जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने वाली एनर्जी है, वो अगर 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, वो सारे इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो जाएंगे, और 4.13 से ज्यादा इजेक्ट नहीं होंगे। सो लिथियम का 2.4 लेस देन 4.1, तो 2.3, 2.2, 3.7, ये सारे के सारे क्या है, आपके फोटोन की एनर्जी से कम वाले वर्क फंक्शन है, यानी इन चारों में तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। कॉपर 4.8 है, फिर सिल्वर 4.3, आयरन 4.7, प्लैटिनम 6.3, टंगस्टन 4.75, यानी ये जो लास्ट के 5 मेटल्स है इनका वर्क फंक्शन हमारे फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है ना, यानी हम इतनी एनर्जी दे ही नहीं रहे कि इनका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। सो ये जो 4 एलिमेंट्स है, ये जो 4 मेटल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से क्या हो जाएगा, इजेक्टेड हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मेटल्स, यानी कि आंसर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. What is the name of the compound? So students, ये हमारा स्पाइरो कंपाउंड है। यहाँ पे तो आपके बना हुआ है साइक्लोपेंटेन, और यहाँ से कनेक्टेड है आपके पास साइक्लोब्यूटेन। तो 2 रिंग्स अगर एक सिंगल कार्बन एटम के थ्रू कनेक्टेड हो, सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्पाइरो। ठीक है, ब्रिज के थ्रू होती है तो हम बोलते हैं बाइसाइक्लो, और यहाँ से है तो स्पाइरो। अब स्पाइरो में जो नंबरिंग है वो हमेशा स्मॉलर रिंग से होती है ना, इसे नंबर 1 नहीं देना है, तो ये स्मॉलर रिंग हो गई 1, 2, 3, ठीक है, देन 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, मीन्स ऑक्टेन। तो स्पाइरो नंबर ऑफ एटम्स इन स्मॉल रिंग, यानी यहाँ पे आपके पास कितने 3, देन इन लार्ज रिंग यानी 1, 2, 3, 4, तो स्पाइरो 3.4, टोटल कार्बन कितने 8, सो दिस इज ऑक्टेन। सो करेक्ट आंसर इज स्पाइरो 3,4 octane, means answer 1. So next question, which one of the following regions of atmosphere contains ozone?
सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन फैक्ट्स बेस्ड है, आपको याद होना चाहिए ओजोन एटमॉस्फेयर के कौन से लेवल में होती है। सो अगर हम अर्थ से 10 किलोमीटर की हाइट पे जाएं तो सबसे पहले हमें मिलता है ट्रोपोस्फेयर, फिर 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर की हाइट पे हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, 50 किलोमीटर की हाइट पे आप जाएंगे तब आपको मिलेगा लमसम है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है यही होती है हमारी ओजोन लेयर। आफ्टर दैट मीजोस्फेयर एंड सो फार सबसे दूर जो है दैट इज थर्मोस्फेयर। तो आपसे पूछा है कि ओजोन लेयर या ओजोन आपको कहां मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें स्ट्रेटोस्फेयर। सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर। Question number 25. Identify product Z in the following sequence of chemical reactions. So आपके पास है methyl cyanide in presence of ethanol and sodium gives X. So students, methyl cyanide in presence of ethanol and sodium, तो आपने पढ़ रखा है BB reduction. ethanol and sodium ये है reducing agent, Buell Planck reduction बोलते हैं, BB reduction। तो अगर ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो जाएगा तो आपके पास जो X है वो X बनेगा, साइनाइड का रिडक्शन कर दो क्या बनेगा, अमाइन बनेगा, CH3 CH2 NH2, तो ये बन गया अमाइन, ये हो गया हमारा X। नाउ X की रिएक्शन नाइट्रस एसिड और वाटर से करानी है, तो नाइट्रस एसिड से ये इथाइल एजोनियम बनेगा, इथाइल एजोनियम आयन, देन इथाइल कैटायन, और फिर आपको इसकी रिएक्शन करानी वाटर से। इसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर आपने याद किया हो, अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करा, ये वाटर एलिमिनेट हो गया, नाइट्रोजन एलिमिनेट हो गया, सो आंसर है हमारा इथेनॉल। तो एक्स के बाद ये पहुंच गए हम वाई। अब वाई से ऑक्सीडेशन करना है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा, यानी पहले एल्डिहाइड और देन एसिड। तो एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। सो करेक्ट आंसर शुड बी CH3COH एसिटिक एसिड। So question number 26, which gas will be absorbed on a solid to greater extent, having non-polar molecule, having highest critical temperature, having lowest critical temperature, having lowest critical pressure। सो स्टूडेंट्स, कौन सी गैस सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब्ड होगी, तो नॉन पोलर तो नहीं है ना, क्योंकि पोलर होता है तो इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, गैस थोड़ी सी क्या होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हैवी हो जाती है, लिक्विड स्टेट में जल्दी आती है, तो नॉन पोलर तो आंसर नहीं हो सकता। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर के दो ऑप्शन है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वैसे तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब जल्दी गैस क्या बन रही है, लिक्विड बन रही है, और अगर गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CHOCOOH ग्लाइऑक्सैलिक एसिड प्लस CH2COR COR यानी कि मेलोनिक एस्टर, पिपेरिडिन, हीट एंड हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो रिएक्शन सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ये मैच करेगा, आपका कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन से मिलता जुलता है। अब देखो पिपेरिडीन जो है दैट इज बेस है ना, पिरिडीन में सारे डबल बॉन्ड हटा दो तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज पिपेरिडीन और ये बेस है। अब आप देखो कि ये CH2COOR मेलोनिक एस्टर, तो मेलोनिक एस्टर में आपके पास दो विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, एसिडिक। एल्डोल कंडेंसेशन में भी कुछ कुछ ऐसा ही था, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक। तो मैं कहूंगी एक तो दे रखा है इसने बेस पिपेरिडीन और एक इसने दे रखा है एक्टिव मिथाइलिनिक ग्रुप जिसका अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जो मेरे पास रिएक्टिव स्पीशीज होगी दैट इज इसके प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद रिएक्टिव स्पीशीज होगी CH-
COOR एंड COOR, यानी ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव, कार्बोनाइल कार्बन का पॉजिटिव कार्बन, यानी यहां हमें लिखना है ये एल्डिहाइड, यहां अप्रोच करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल और यहां क्या लिखा है COH। ओके, सो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट हो जाएगा, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल यहां अप्रोच करेगा। सो कुछ इंटरमीडिएट जो है वो इस तरह से आएगा HOOC, देन ये आपका हो गया CHO- और ये CH इस पे अप्रोच करेगा, सो CH COOR एंड COOR। देखा था हमने एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसा ही कुछ था, है ना, सिर्फ ये कंपाउंड थोड़ा नया है। अब क्या करें, तो हमने पिपेरेडिन को यूज कर लिया, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब हमें पता है ये वापस प्रोटोनेटेड हो जाएगा, है ना, जो प्रोटॉन यहां से निकला है पिपेरेडिन के पास, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। साथ साथ में हमारे पास हाइड्रोलिसिस भी है, तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एस्टर का जो लीविंग ग्रुप है दैट इज OR, ये लीविंग ग्रुप हट जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन के अटैक से अल्कोहल बनके ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और यहां मैं प्रोटॉन लगा दूं तो स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, COH, देन CH, देन OH, देन अगेन CH, COOR एंड COOH एंड COOH। ठीक है, लिविंग ग्रुप OR हमने हटा दिया, यानी कि ये कंपाउंड हो गया ऐसा। अब हीट भी है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी हमने देखा था जब हीट होगा तो अभी भी ये जो दोनों लिविंग ग्रुप है, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन अभी भी क्या एसिडिक है, तो यहां से OH और H इवन सीवी मैकेनिज्म के थ्रू वाटर एलिमिनेट हो सकता है और हीट करोगे तो यहां से CO2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो अब जो कंपाउंड आ रहा है हमारे पास वो है COOH। ठीक है, ये आपके पास आ गया COOH, आफ्टर दैट CH, देन आपके पास है डबल बॉन्ड, देन अगेन C और यहां से H CH और फिर है आपके पास COOH, यानी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि आंसर आपका फर्स्ट। और ये रिएक्शन का नाम है नोवेंजेल रिएक्शन। तो बच्चों नोवेंजेल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो मिलता जुलता है एल्डोल कंडेंसेशन से। सो क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा और करेक्ट आंसर है नोवेंजेल रिएक्शन ए, आंसर ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो आपको प्लेनर मॉलिक्यूल बताना है। तो आपको पता है अगर कोई कंपाउंड में कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब वैसे भी नहीं होगा, है ना, तो प्लेनर। तो अब देख लो, आपको यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर मिलेगा, यहाँ पे भी लोन पेयर है, PH3 में P पे भी लोन पेयर है और तीनों का स्ट्रक्चर सेम आएगा, है ना, NF3। तो आप देखो NF3 नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स विथ क्लोरीन एंड 1 लोन पेयर, तो ये ज्योमेट्री हो गई पिरामिडल। NCl3 सेम स्ट्रक्चर सेम ज्योमेट्री, NCl3 भी क्या हो गया आपका पिरामिडल। अब नाइट्रोजन फैमिली का ही तो मेंबर है फास्फोरस, तो सेम स्ट्रक्चर सेम ज्योमेट्री, तो ये तीनों आपके हो गए पिरामिडल और पिरामिडल कभी भी प्लेनर नहीं होगा। तो ये 3 आंसर तो आपके होने से रहे। अब BF3, तो BF3 में बोरॉन इज फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2 और ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल कोप्लेनर। सो करेक्ट आंसर इज BF3। Now the type of bond that is most important in maintaining secondary structure of protein. So students, protein के structure को हमने 4 parts में divide किया है, primary, secondary, tertiary and quaternary. Primary आपको सिर्फ sequence बताती है, sequence of amino acid, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। Secondary को हमने 2 parts में divide किया था, alpha helix and beta pleated sheet structure. अब चाहे alpha helix हो, यानी इस तरह से alpha helix और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, है ना, तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, दोनों ही स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, आपने पढ़ा होगा हेलिक्स जो है वो रिजिड होता है, कॉइलिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस तरह से CO और NH के बीच में। सिमिलरली ये जो आपका बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी सेम चीज है, C डबल बॉन्ड हो और NH या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये अनकॉइल नहीं होगा, ये प्लीट्स जो है ये मेंटेन रहेंगी। रीजन क्या है? तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द बैकबोन, कॉइल्स के बीच में, शीट्स के बीच में। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नाउ iodometric titrations are usually performed in neutral or mildly alkaline pH equals to 8 or weakly acidic solutions, which statement is not valid for the observation. अब स्टूडेंट्स iodometric titration आपके सिलेबस में है नहीं, बट क्वेश्चन है तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, इनवैलिड है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन में I2 डिस्प्रोपोर्शियोनेट हो जाता है I माइनस और I2, तो ये ठीक है। आयोडीन जो है वो एल्केलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शियोनेट हो जाता है I माइनस और IO माइनस, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट भी इसका ठीक है कि अगर आप ऑक्सीजन और इसमें मिक्स करोगे, है ना, और ऑक्सीजन डिसॉल्व करोगे एसिडिक मीडियम में, तो I माइनस जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। सो I माइनस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन टेंड्स टू बी ऑक्सीडाइज्ड बाय डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, है ना, और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फर्स्ट ठीक है, थर्ड भी ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशंस स्टार्च यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट टेंड्स टू हाइड्रोलाइज और डिकम्पोज। ये भी करेक्ट है कि अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो एंड पॉइंट पे हम स्टार्च यूज करते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट। एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इंक्रीज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो टाइट्रेशन कौन सी आपकी? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट Ne2SO3। अब स्टूडेंट्स एसिडिक मीडियम में इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉट वैलिड आपसे पूछा है, तो ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा स्टेटमेंट 4। Now, the stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium, thallium increases in the sequence. So students, ये जो ग्रुप है ये आपका है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक क्वेश्चन पहले भी आपके पास था इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, इसी पेपर में, है ना। तो देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP1। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है टेंडेंसी ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और s को इनर्ट कर दो, इनर्ट पेयर मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो फिर s पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स जो है वो ही इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन 18 और 32 यूनिट से बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, वो होनी चाहिए आपकी थैलियम, थैलियम +1 मोस्ट स्टेबल। देन आपके पास होना चाहिए इंडियम प्लस, देन होना चाहिए गैलियम, और एल्यूमिनियम तो +1 गैसेस स्टेट में तो नहीं होता, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो हम कहेंगे थैलियम प्लस, इंडियम प्लस, गैलियम, और +1 की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो एल्यूमिनियम में +1 सबसे लीस्ट होगा। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी, तो थैलियम प्लस हाईएस्ट, आफ्टर दैट इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। Now next question number 32, dissolution of 1.5 gram non-volatile solute। तो solute आपके पास है 1.5 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास, solute का मोलर मास स्मॉल m में ले लेते हो 60, ठीक है, इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कैपिटल W आपका है 250 ग्राम्स। नाउ reduces freezing point by 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन आया दैट इज 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी आपको Kf फाइंड करना है, ठीक है। अब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कोई इस तरह का केस नहीं, यानी वेंट ऑफ फैक्टर I हम ले लेते हैं 1। अब फाइंड आपको करना है Kf, तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू
1000 into kf into small w divided by capital W small m. So डेल्टा TF आपके पास कितना है 0.01 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF फाइंड करना है. स्मॉल w जो है दैट इज 1.5. कैपिटल W कितना आपका 250 एंड स्मॉल m कितना है मोलर मास 60. तो मोलर मास है 60. ठीक है, पॉइंट उड़ा देते हैं हम. तो 15 4 60 हो गया. ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, ये 0 0 ये तो आपका गया. 25 4 100 हो गया ना, तो ये भी चला गया और आपके पास यहां बचा 10 को उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो KF इक्वल्स टू आपका आएगा 0.01 मल्टीप्लाई विद 10. तो आपके पास आंसर हो गया 0.1 है ना. 0.1 आपके पास क्या KF है ना, तो KF की यूनिट क्या है किलो केल्विन मोल इनवर्स. सो करेक्ट आंसर इज 0.1. करेक्ट आंसर इज D. So moving to next question, in which of the following oxidation number of chlorine is +5? So क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सब में फाइंड कर लेते हैं. देखो यहाँ Cl2 है तो मैं इसको ले लेती हूँ 2x. ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 इंटू 7 इक्वल्स टू 0. तो 2x 14 x आपका हो जाएगा 7. यहाँ ले लेते हैं Clx मान लो, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल्स टू चार्ज इज -1. सो x इक्वल्स टू 5. आपको 5 देखना था. ClO माइनस में Clx हो गया, ऑक्सीजन -2 -1 x इक्वल्स टू 1. देन पर क्लोराइड आयन ClO का x हो गया -2 मल्टीप्लाई विद 4 इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 7. सो करेक्ट आंसर इज ClO3 माइनस x इक्वल्स टू 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following is most easily hydrolyzed with aqueous KOH? तो सारे हेलो एल्केन है और aqueous KOH यानी कि न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस. तो सबसे जल्दी हाइड्रोलाइज कौन हो जाएगा? तो आप देखो सबसे स्टेबल कार्ब कैटायन आपको कहां मिला. तो यहां तो आप देख सकते हो ये जो विनाइलिक कंपोजिशन है ये तो Cl जो है ये आपका कॉन्जुगेशन में है ना, डबल बॉन्ड के साथ. ये तो आपका कॉन्जुगेशन में नेगेटिव ये इधर, तो ये तो क्या हो गया लीस्ट रिएक्टिव. ये आंसर तो वैसे ही रिमूव कर दो, ये तो होने से रहा. देन यहाँ आपका बेंजाइल कार्ब कैटायन स्टेबल है. यहाँ देखो बेंजाइल कार्ब कैटायन भी है और डिग्री क्या है 2 डिग्री. तो सबसे स्टेबल जो कार्ब कैटायन है दैट इज D. तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो पहले D हो जाएगा, फिर B, फिर A और देन आपका विनाइलिक हैलाइड. सो मोस्ट इजीली हाइड्रोलाइज मतलब मोस्ट रिएक्टिव. सो करेक्ट आंसर इज D. Now question number 35. Mixture of 1 gram each of sodium carbonate and sodium bicarbonate. So एक तो आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ईच यानी ये भी आपके पास 1 ग्राम है और ये भी आपके पास 1 ग्राम है. ठीक है, इज रिएक्ट विद 0.1 नॉर्मल HCl. द क्वांटिटी ऑफ 0.1 m HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द अबव मिक्सचर. क्वांटिटी मतलब ऑप्शन जो है वो मिलीलीटर में है यानी वॉल्यूम पूछा है. अब स्टूडेंट 0.1 नॉर्मल HCl और 0.1 m HCl एक ही बात है ना. HCl एसिड है तो बेसिसिटी इसकी 1 है. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी. तो बेसिसिटी 1 है तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है. नाउ 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट तो मैं मोल्स फाइंड कर लेती हूँ. मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. सोडियम का मास होता है 23 मल्टीप्लाई विद 2 देन 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 3. और यहाँ पे भी मोल्स फाइंड कर लेते हैं. तो गिवन मास 1 देन 23 प्लस 1 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48. ठीक है, तो यहाँ जो मोल्स आ गए वो है आपके पास 1 अपॉन 46 48 50 60 और 46 हो गया 106. और यहाँ जो मोल आ गए 50 60 और 84 है 23 और हाँ ठीक है 84.
ठीक है, तो ये मोल्स हो गए 1/106 और ये हो गए 1/84। अब हमें HCl से रिएक्शन करानी, तो देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराओ, इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी है। तो ये हो गया ट्वाइस NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब आप देखो अगर ये 1 मोल है तो HCl कितना है 2 मोल, तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट कितना है 1/106, तो ये कितना हो जाएगा 2/106 मोल। तो HCl यहां हो गया 2/106। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट भी HCl से रिएक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट है दैट इज NaCl CO2 एंड वाटर, NaCl CO2 एंड वाटर। अब आप देखो ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मोल कितने 1/84, तो HCl का मोल हो गया 1/84। ठीक है, तो हुआ क्या है कि ये तो मिक्सचर है, तो HCl इन दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ HCl मैं यहां लिख लेती हूं, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ HCl, तो हम कहेंगे फर्स्ट टाइम तो रिक्वायर्ड था 2/106 और सेकेंड टाइम है 2/106 और सेकेंड टाइम कितना है 1/84। ये टोटल रिक्वायर्ड मोल है। नाउ मोलारिटी इक्वल्स टू क्या है, तो मोलारिटी है मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलारिटी आपको गिवन है कितना 0.1, तो मोलारिटी हो गई 0.1। फाइंड क्या करना है वॉल्यूम, तो हम सीधा वॉल्यूम ही फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ध्यान रखना लीटर में है ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मोल है 2/106 प्लस 1/84 डिवाइड बाय मोलारिटी कितना है 0.1। तो बच्चों ये फाइंड तो कर ही लोगी, इसका सॉल्यूशन आएगा तुम्हारे 0.308 लीटर, यानी मिली लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 308 ml। सो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया 308 ml। So moving to next question. Question number 36. Which is the weakest among the following type of bond? Ionic bond, covalent bond, metallic bond and hydrogen bond. So students, weakest bond बताना है आपको, क्लियर है? Ionic bond, covalent, metallic. Ionic तो ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कैटायन एनायन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, कोवलेंट में भी शेयरिंग है, मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम्स के बीच में बनता है तो पैकिंग होती है क्लोज, है ना। तो ये तीनों तो है केमिकल बॉन्ड्स, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पे आएंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज अमंग द मॉलिक्यूल्स या विद इन अ मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनमें सबसे ज्यादा वीकेस्ट बॉन्ड है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। कंपाउंड A C7H8O, C7H8O ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। A is insoluble in water, dilute HCl and aqueous sodium bicarbonate, but it dissolves in dilute NaOH। अब NaOH में घुल रहा है मतलब कंपाउंड हमें लग रहा है एसिडिक है, क्योंकि एसिड में तो घुला नहीं। ठीक है, when A is heated with Br2 bromine water, it is converted into compound C7H5OBr3। मतलब ब्रोमीन वाटर से जब इसने रिएक्शन की तो 3 ब्रोमीन एटम इस पे कनेक्टेड हो गए, अच्छा रैपिडली, द स्ट्रक्चर ऑफ A। तो स्टूडेंट्स यहां से थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि ये ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बना रहा है, मतलब फिनॉल में भी ऐसा ही कुछ पड़ा था। तो देखो C7H8O, अगर मैं इसमें से फिनाइल ग्रुप माइनस कर लूं C6H5, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या है C है, H3 है और O है। तो पॉसिबिलिटी तो एक ये भी हो सकती है कि बेंजीन और ये मिथॉक्सीबेंजीन यानी एनीसॉल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था। बेंजीन CH2OH बेंजाइल अल्कोहल भी पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये फिनॉल होता और एक आपके पास क्या होता मिथाइल ग्रुप, है ना। अब ये कहाँ कनेक्ट हो सकता है तो मैं कह रही हूँ ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब इन पॉसिबिलिटीज में आप देखो कि ये वाटर इनसॉल्युबल है यानी अल्कोहल, ये तो हम नहीं मान सकते। ठीक है, फिर डाइल्यूट HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट में भी सॉल्युबल नहीं है, NaOH में सॉल्युबल है यानी स्लाइटली एसिडिक है,
यानी फिनॉल से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब मैं इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन भी करा रही हूं तो ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बना रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी कब होती है बच्चों, अगर ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन और पोलर सॉल्वेंट में ले रही हूं वाटर, ठीक है। ब्रोमीन अलग है, वाटर एज ए सॉल्वेंट लिख दिया है वाटर, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है ना। तो ब्रोमीन से अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन कराऊं तो मुझे पता है कि ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव जरूर बना लेता है, यानी और दिया भी आपको कि ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाएगा, यानी ये फिनॉल और यहां पे लगेगा आपका Br, Br और Br, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये 3 बार प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब ये तीनों पोजीशंस पे तो Br आया, यानी ये मिथाइल ग्रुप आपका 246 पोजीशन पे तो नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मिथाइल ग्रुप आपका मेटा पोजीशन पे। तो जो करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फिनॉल तो होना चाहिए और मिथाइल ग्रुप क्या होना चाहिए, मेटा पोजीशन पे होना चाहिए, यानी ये आपका है क्रिसॉल, तो ये मेटा क्रिसॉल। सो करेक्ट आंसर इज सी। Now question number 38, the rate constant of the reaction twice H2O2 aqueous, twice H2O2 aqueous और आपको क्या मिल रहा है, twice H2O liquid plus O2, तो twice H2O liquid plus O2। अच्छा, रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है K, क्या दिया है बच्चों, 3 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। तो टाइम इनवर्स यहां से आइडेंटिफाई करो, टाइम इनवर्स रेट कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नाउ एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी 2 × 10⁻⁴ मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। अब ये तो है मिनट इनवर्स, वो है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसको मिनट इनवर्स को सेकेंड में, सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 3 × 10⁻³ 1/मिनट है ना, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नाउ रेट क्या है, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O2 और ऑर्डर 1 है तो पावर 1। अब आपसे पूछा है कि कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए कि रेट जो है वो आपकी होगी 2 × 10⁻⁴। तो रेट इतनी है, K मुझे पता है कितना, 3 × 10⁻³ 60 यहां आ जाएगा, ठीक है। ये रेट कब होगी, इस रेट पे कंसंट्रेशन क्या होगी, है ना, रेट तो जो है वो ही है ना, कंसंट्रेशन क्या होगी H2O2। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 3 × 2 = 60, 10⁻³ -4 कैंसिल हो गया, -1 -1 तो ये आ गया 4, मोलारिटी जो है आपकी 4 और करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। Now question number 39, the most stable radical among the following। अब देखो बच्चों, रेडिकल जो होता है ना वो बेचारा पहले से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। तो सारे 1 डिग्री रेडिकल दे रखे इथाइल, और यहाँ जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप तुम्हारा डिसाइड करेगा इसकी स्टेबिलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको तुम स्टेबल बनाना चाहते हो तो ग्रुप लगाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो डेफिशिएंसी थोड़ी कम होगी और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मुझे चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन नाइट्रो लगा दिया तो नाइट्रो क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। COO- ये भी तुम्हारा विड्रॉइंग ग्रुप है। मिथाइल इसका जरूर प्लस आई इफेक्ट है। सो थर्ड की बात अगर अपन यहां देखें, देखो O- के लिए क्या है, O- का प्लस एम इफेक्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है ना। तो O- इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हम देखेंगे ये जो आपका डोनेटिंग ग्रुप है ये इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct plot of lambda m and root c for KCl, ठीक है। y और x एक्सिस पे दे रखा है, y एक्सिस पे आपको लेना है lambda m और x एक्सिस पे हमें लेना है रूट c, ठीक है।
सो लैम्डा एम और रूट सी में ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ अगर हम चले तो लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। ठीक है, यानी ये तो है आपकी मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, या आप इसे कह सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये तो हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, ए आपका कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी जो है दैट इज कंसेंट्रेशन। अब जैसे जैसे आप सी की वैल्यू बढ़ाओगे तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और सी अगर आपने जीरो ही कर दिया तो मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट हो जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अगर मैं इसको y एक्सिस पे ले लूं, इसको x एक्सिस पे ले लूं, तो जो स्लोप है वो स्लोप क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव। तो देखो फर्स्ट ग्राफ में आपको स्लोप नेगेटिव नहीं मिलेगा, फोर्थ में तो उसे कांस्टेंट ही कर दिया, थर्ड में भी स्लोप नेगेटिव नहीं है। स्लोप नेगेटिव जो है वो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 पे है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, at constant temperature the equilibrium constant Kp for the decomposition reaction N2O4 gives twice NO2 is expressed by Kp जो है that is आपके पास है 4x square P upon 1 minus x square. Now which one of the following statement is true? So Kp remains constant with change in P and x, Kp increases with decrease of x, Kp increases with increase of x and Kp increases with increase of P. तो बच्चों Kp हो या Kc, Kp Kc हमेशा कांस्टेंट रहता है, और अगर चेंज भी होगा तो सिर्फ किसके साथ चेंज होगा, चेंज विद टेम्परेचर। तो Kp ऑलवेज कांस्टेंट विद, चाहे आप P में चेंज करो चाहे x में, है ना, P चेंज करोगे तो x चेंज जरूर होगा ना, क्योंकि x स्क्वायर P आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो P के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो P चेंज करोगे x चेंज होगा, लेकिन Kp आपका हर बार कांस्टेंट रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 42, अ हीटिंग कॉइल इज इमर्स्ड इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर लिक्विड एट 1 atm and 100 degrees centigrade in a closed vessel. In this heating process, 60% of the liquid is converted into the gaseous form at constant pressure of 1 atm. The densities of the liquid and gaseous water under these conditions are 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube respectively. Magnitude of the work done for the process is, take 1 atm equals to 10 to the power 5 Newton per meter square. तो थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में आपको रहेगा। तो देखो 100 ग्राम वाटर लिक्विड का सैंपल है, सो 100 ग्राम वाटर लिक्विड का सैंपल हमारे पास हो गया। ठीक है, वाटर लिक्विड है। अब इसमें इसने क्या किया, एक हीटिंग कॉइल डाल दी। ठीक है बच्चों, हीटिंग कॉइल डाल दी इसने, है ना, ये 100 ग्राम वाटर। अब अगर हीटिंग कॉइल डाली तो वाटर लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर गैस में, और ये कंटेनर आपका क्लोज्ड है तो वाटर गैस भी है हमारे पास। अब कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, 60% लिक्विड ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो वाटर लिक्विड है, वाटर गैस की बात करें, ठीक है, तो वाटर लिक्विड तो तुमने लिया था 100 ग्राम, है ना, और 60% कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वाटर गैस में कितना है, 60 ग्राम। तो 60 ग्राम वाटर गैस है, और फाइनल सिचुएशन में मैं देखूं तो 40 ग्राम वाटर लिक्विड बचा हुआ रहेगा। नाउ प्रेशर आपका 1 atm है, डेंसिटीज आपको दे रखी है दोनों की, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब देखो एक्सपेंशन हो रहा है लिक्विड से गैस, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो W नेगेटिव हो जाएगा। सो W इक्वल्स टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो है 1 atm, जिसे हमें लेना है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा V क्या लेना है, तो मुझे लेना है डेल्टा V फाइनल और V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। सो V फाइनल क्या है, तो V फाइनल में देखो 60 ग्राम तो गैस है, V फाइनल की बात करूं तो 60 ग्राम तो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, लेकिन बाद में 40 ग्राम बचा तो रहेगा ना, 40 ग्राम वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये तो क्या बोलते हैं, मास है इसका। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या है,
डेंसिटी इक्वल्स टू है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर दूं, डेंसिटी से डिवाइड कर दूं, और यहां पे भी क्या करती हूं, डेंसिटी से डिवाइड कर लेती हूं। ठीक है, तो V फाइनल जो है दैट इज 60 ग्राम। अब देखो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, तो 60 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 60 इंटू 10⁻⁻3। अब वाटर गैस की डेंसिटी देखो, लिक्विड एंड गैस, वाटर गैस की डेंसिटी है 0.60। ठीक है, तो डेंसिटी हो गई 0.60। ठीक है, अब ये पॉइंट उड़ा दिया तो ये तुम्हारा हो गया 100, 60 हो गया 1। अब क्या करें, वाटर लिक्विड भी तो है हमारे पास फाइनल में, वाटर लिक्विड कितना है 40 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻3, और डेंसिटी वाटर लिक्विड की कितनी है 1000। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1000। क्लियर, ये तो है V फाइनल। अब V इनिशियल, तो इनिशियल तो हमारे पास क्या था 100 ग्राम वाटर लिक्विड था ना, तो वॉल्यूम फाइंड करना है मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3, और वाटर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1000, तो ये हो गया 1000। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज W इक्वल्स टू -P डेल्टा V। अब देखो बच्चों क्या करें हम, W इक्वल्स टू यहां से चलते, देखो थोड़ा स्पेस का गड़बड़ है, W इक्वल्स टू माइनस प्रेशर मैंने रख दिया 10⁵, और जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम फाइंड करना है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। W इक्वल्स टू -10⁵ फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है देखो, ये हमने सॉल्व कर लिया था 100 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻⁻3 तो हमारे पास यहाँ है, और ये कितना है, ये हो गया तुम्हारा 0.04 है ना, 0.04 इंटू 10⁻⁻3, ये तो हो गया फाइनल वॉल्यूम। माइनस क्या कहना है, इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल कितना है आपका 100 कैंसिल हो गया, तो 0.1, तो ये हो गया 0.1 इंटू 10⁻⁻3। बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो W इक्वल्स टू, ये तो मैग्नीट्यूड है -10⁵ रख देती हूँ है ना, 100 और 0.04 ऐड करोगे तो 100.04 इंटू 10⁻⁻3, और ये हो जाएगा -0.1 इंटू 10⁻⁻3। सो W इक्वल्स टू 10⁻, रहने दो, 100.04 में से 0.1 को माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 99.94, तो 99.94 इंटू 10⁻⁻3 कॉमन ले लिया दोनों साइड। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आपको दिखेगा ये 99.94 है ना, ये पॉइंट है, तो फाइनल आंसर तुम्हें मिलेगा 10⁻³ और 10⁵ को कैंसिल करोगे तो 100 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9994 जूल। सो करेक्ट आंसर इज C, 9994 जूल। सो क्वेश्चन नंबर 43, आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय CrNH3 H2O 2Cl2, कॉम्प्लेक्स का चार्ज है +1 R। सो आयोनाइजेशन, ऑप्टिकल, हाइड्रेट ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल। तो बच्चों आयोनाइजेशन के लिए बाहर जो आयन है उसको अंदर ले ले और अंदर वाले आयन को बाहर डाल दे, तो बाहर तो कोई आयन है ही नहीं, तो आयोनाइजेशन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो आपको गया। नाउ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट में मुझे एम्बिडेंट लिगेंड चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड मेरे पास है नहीं, तो आपका ये ऑप्शन भी गया। अब आप कंफ्यूज हो हाइड्रेट और ज्योमेट्रिकल, तो चेक कर लो, देखो आपका कॉम्प्लेक्स है M A2B2C2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो M A2B2C2 अगर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने जाओगे तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। मान लो मैंने एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सस बना दिया, देखो A2 AA 90 डिग्री पे रख दी, B2 को भी मैंने 90 पे रख दिया और C2 को भी 90 पे रख दिया, तो ये इसका सस है।
ट्रांस भी बना सकते हो, ए ट्रांस ए, बी ट्रांस बी, सी ट्रांस सी, है ना। टोटल बनाओगे तो 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो निकलेंगे, तो ज्योमेट्रिकल तो होगी ही होगी, और एक ही ऑप्शन मिला मुझे जिसमें ज्योमेट्रिकल है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अब इसको कोई भी एंगल से कट करो, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स में यहां पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल। सो अगर आपने सिर्फ इतना पता लगा लिया कि M(A2, B2, C2) ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगी, कंफर्म है, तो आपको GI का ऑप्शन ये एक मिला, है ना, और साथ में ऑप्टिकल क्यों है मैंने आपको बता दिया। सो करेक्ट आंसर इज C। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2PO4-1। तो स्टूडेंट्स आपके पास है H2PO4-1, इसका बेस बताना है, मतलब ये एसिड है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉ के अकॉर्डिंग एसिड कौन है, जो प्रोटॉन रिलीज करे, है ना। आपको इसका बेस बताना है, तो इसे एसिड मान लो, तो एसिड क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज करवा दो, तो इसमें से एक प्रोटॉन जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा, HPO4-2। सो ऑप्शन क्या मिला आपको, C, HPO4-2। So moving to next problem, chain isomers of C7H16। तो बच्चों C7H16 यानी ये हो गया एल्केन हो गया, CnH2n प्लस 2, 7 2 14 प्लस 2 16, तो हेप्टेन है। अब आपको सिर्फ चेन आइसोमर्स फाइंड करने हैं, तो देखो फर्स्ट जो है चेन हम लिख लेते हैं 7 कार्बन एटम की, 3 4 5 6 और 7, तो फर्स्ट आइसोमर तो हमने बना दिया 7 कार्बन का। नाउ चेन ही तो बदलनी है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, लॉन्ग चेन हमने बना दी 6 कार्बन एटम की, और मिथाइल को 2 पे लिख दिया। अब देखो मिथाइल को 3 पे भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन वो पोजीशन चेंज हो जाती, तो मुझे पोजीशन आइसोमर नहीं बताना है, तो इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी। नाउ एक चेन हम ले लेते हैं 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5, और मान लो इसे इथाइल लिख दे, या अगर मैं 2 मिथाइल भी लिख दूं तो भी कोई मतलब नहीं है, चेन तो लॉन्ग चेन कितने की है, 5 कार्बन की है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। फिर लॉन्ग चेन अगर हम कितने की ले लें, 4 कार्बन एटम की ले लें, और यहां पे इथाइल लिख दें, यहां पे मिथाइल, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका चेन आइसोमर। तो टोटल आइसोमर्स जिसमें चेन बदल रही है, देखो फर्स्ट कंपाउंड में लॉन्ग चेन 7 कार्बन, देन लॉन्ग चेन 6 कार्बन, देन लॉन्ग चेन 5 कार्बन, और यहां हो गई लॉन्ग चेन 4 कार्बन। अब जो भी चेंजेस करेंगे ना वो पोजीशन हो जाएगा, तो पोजीशन नहीं पूछा है, सिर्फ चेन ही पूछा है, तो चेन आइसोमर्स आर 4, मींस करेक्ट आंसर शुड बी सेकंड। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 45 जो हमने सॉल्व कर लिया। सो दिस वाज आवर पेपर, एनटीए पेपर 91। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आपको आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी भेजते रहेंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड, subscribe our channel and like our video. Till then, keep watching, keep studying. Goodbye.